और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में फ़ोन टैपिंग मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अब भी फ़ोन टैपिंग का सिलसिला जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले को हुकूमत नहायत संजीदगी से ले रही है और ज़िम्मेदारों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। खम्मम में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंगुलटी ने कहा कि फ़ोन टैपिंग के लिए कहाँ कहाँ आलात नस्ब किए गए हैं, इस बारे में हुकूमत तफसीली जाँच कर रही है। ఏవైతే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది అని పదే పదే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల దగ్గర నుంచి ఆనరబుల్ హైకోర్టు జడ్జిల దగ్గర నుంచి సామాన్య కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి చివరికి భార్య భర్తల దగ్గర నుంచి తన సొంత కూతురు ఫోను తన సొంత అల్లుడి ఫోను ట్యాప్ చేశామని కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు రాష్ట్రంలోని అనేక మంది ప్రముఖులు ఆనాడు గగ్గోలు పెట్టింది నిజం ఎంతైతే ఉందో ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్లు ఇంకా వీరి దగ్గర ఉన్నట్లు నాకు అనిపిస్తుంది. ఏదైతే నేను కాన్ఫరెన్స్ లో నేను తీసుకున్న కాల్ని నేను ఏం మాట్లాడానో అని మీరు అడుగుతున్నారో, వీరి దగ్గర ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా ఉన్నది అని। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत भर में कल शहरी मकामी इदारों के लिए वोटिंग होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के तहत 116 म्यूनसिपलिटीज़ और 7 म्यूनसिपल कारपोरेशंस में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर रियासत के 123 शहरी मकामी इदारों में वोटिंग होगी, जहां 2996 वार्ड्स में 12,930 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुक्काम के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती 13 फरवरी को की जाएगी। Yeah. Telangana state is going to polls tomorrow for the elections to 7 municipal corporations and 116 municipalities. That is tomorrow, that is 11th of February. The state is under model code of conduct, almost except Hyderabad city. Almost the entire state is under model code of conduct for the past 15 days when the elections were declared. As far as the police work is concerned, for the past 15 days we are doing the preparatory work to ensure peaceful elections, and we have got 1183 arms deposited, which are licensed arms, and we have also bound down 4,318 persons for good behavior, and we also executed 400 close to 400 non-bailable warrants, and Telangana has borders with 4 states: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Karnataka. So we established 20 checkposts on these borders, and also within the state also we have established 55 checkposts. रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी का एतमाद ज़ाहिर किया और मुसलमानों की खुशामद के बीजेपी के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। We are going to win majority of the municipal corporation and municipal council elections. At least we are going to win 80% of the seats in the municipal elections. And we are very clear, basically for the past 2 years our chief minister and the government are doing great work in terms of urban development. So keeping that in view, and next 3 years and future years also clearly reflects that our government has great edge in terms of development and welfare, and people, we look at the people's pulse. People's pulse are looking towards us and we'll be winning most. So here for the Congress, each and every voter, each and every citizen of this state is important to us. We don't segregate the elections basing on the religion. We do much to our Hindu brethren, also the Christian, Muslim, Sikh, and all put together.
they are our sisters and brothers, and we don't have any discrimination. On the religious polarization, BJP anyway 6 votes, and people are there to judge us. We are going to win majority of the municipal corporation and municipal council elections. At least we are. जंगांव जिले में 2 म्यूनसिपलिटियों के लिए कल पोलिंग होगी। जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज़ का दौरा किया और मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। साथ ही मुतल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि जंगांव म्यूनसिपलिटी के 30 वार्ड्स और स्टेशन घनपुर म्यूनसिपलिटी के 18 वार्ड्स में पोलिंग होगी और पोलिंग के पुरअमन इनकाद के लिए मुकम्मल पुलिस बंदोबस्त हो चुका है। साथ ही मुबस्सरीन की निगरानी में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। कलेक्टर के मुताबिक 2 म्यूनसिपलिटियों में मजमूई तौर पर 62,595 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 2 म्यूनसिपालिटीज़ को यहाँ पे इंतखाबात कल होने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आज हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख साहब। उनसे बात करके पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के अरेंजमेंट्स कैसे चल रहे हैं। सर बताइए, यहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, कितने म्यूनसिपालिटीज़ है और कितने पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे और क्या इंतजाम हो रहे हैं? सबको नमस्कार। आज जनगाम जिला के 2 म्यूनसिपालिटी से, जनगाम म्यूनसिपालिटी और स्टेशन घनपुर म्यूनसिपालिटी, तो 2 म्यूनसिपालिटीज़ में जनगाम म्यूनसिपालिटी में 30 वार्ड है और घनपुर म्यूनसिपालिटी में 18 वार्ड है। टोटल 48 वार्ड्स का कल 11th डे मॉर्निंग 7 AM टू शाम में 5 बजे तक 5 PM वరకు इलेक्शन वोटिंग शुक्रिया रहेगा। तो मेरे रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि ये वोटिंग प्रोसेस में सब लोग आके आपका मतदान यूज़ करने के लिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ। और आज भी ये DRC सेंटर में सब POs, APOs, OPOs सब लोग भी ट्रेंड मटेरियल, पोलिंग पर्सनल सब आज डिस्पैच हो रहा है। और हर एक पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग का भी अरेंजमेंट्स किया। सो क्रिटिकल और कुछ भी सेंसिटिव इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए हम 100% हम पुलिस फोर्स भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं और हर एक लोकेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी समस्यात्मक इश्यू नहीं होने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से म्यूनसिपल कमिश्नर एंड हिज टीम और पुलिस, रेवेन्यू एंड आल्सो ऑल डिपार्टमेंट सब कोऑर्डिनेट करके ये सब हम प्लान कर रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है कि फिर एक बार आप सबको पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस में आप सब लोग आपका वोट यूज़ करने के लिए मैं आप सबको विनती कर रहा हूँ। और 18 लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड से वोटर ID के साथ, नहीं तो भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और डिफरेंट पासबुक्स, पासपोर्ट और ऐसा 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ID कार्ड से, तो वो भी आप वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसा दिखा के आप सब लोग आपके पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकते हैं। और आपका वोटर लिस्ट में आपका नंबर देखने के लिए भी TSCC का वेबसाइट में भी आप वार्ड वाइज पोलिंग स्टेशन लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, वोटर स्लिप नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो वो भी आपको इजी रहेगा कि आप पोलिंग स्टेशन में जाने के बाद तुरंत वो वोटर स्लिप नंबर से जल्दी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होकर जल्दी वोट करके भी आ सकते हैं। तो आपका प्री डाउनलोडेड वोटर लिस्ट भी आप SCC वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वोटर्स को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा हम यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कैमरामैन आबिद अली के साथ मैं मोहम्मद एजाज, जनगांव डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना। मेदक ज़िले में पोलिंग पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्किद कराने पर जोर दिया गया। ज़िला इलेक्शन अफसर राहुल राज ने मेदक ज़िले के मरकज़ में वाक़े वेज़ली जूनियर कॉलेज का दौरा किया और यहाँ कायम इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि पोलिंग अमले को चेकलिस्ट के मुताबिक तमाम इंतखाबी सामान मुकम्मल तौर पर फराहम किया जाए और अमले को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान मुसल्लह पुलिस बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए और स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे नस्ब किए जाए। वनपर्ती ज़िले में म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामिया ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ज़िला कलेक्टर ने इंतखाबी सामान की तकसीम के इंतजामात का जायज़ा लिया और वोटिंग में हिस्सा लेने की वोटरों से अपील की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आदर्श सौरभ ने इंतखाबी सामान की तकसीम के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वनपर्ती म्यूनसिपलिटी के 33 वार्ड्स के लिए 99 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक वनपर्ती म्यूनसिपलिटी में मजमूई तौर पर 64,190 वोटर्स हैं और 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। నమస్కారం. మనకి 11th ఫిబ్రవరి పోలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో 99 పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి.
ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, 64,000 ఓటర్లు మనకు వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నారు. మీరంతా కూడా వచ్చి మీ ఓట్ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల లోపు మీ ఓట్ హక్కుని మీరు వినియోగించుకోలేరు. మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి మీ ఓటు వేయాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. దీనికి సంబంధించి కమిషనర్ గారు, తహసీల్దార్ గారు ఈ పోల్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా పోలీస్ బృందం ఇంకా జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా వారికి సపోర్ట్లా ఉంది. ఈ సక్సెస్ చేయాలని ఈ ఎలక్షన్ ప్రక్రియని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. వరకు ఎవరైతే పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధిలో వచ్చి ఉంటారో ఆ కాంపౌండ్లో వాళ్ళని కూడా అనుమతి ఇస్తాము ఓటు వేయడానికి. 5 o'clock తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి అనుమతి ఉండదు. సో 5 లోపలనే వస్తే అది మంచిది, పొద్దున్నే వస్తే ఇంకా మంచిది, మనకు అప్పుడు రష్ కూడా. नगर करनूल ज़िले के कोल्हापुर में इंतज़ामिया ने बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। ज़िला कलेक्टर ने पोलिंग अमले और इलेक्शन के सामान की तकसीम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर बदावत संतोष ने इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने पोलिंग अमले को फराहम किए जाने वाले इंतखाबी सामान की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। कलेक्टर ने हिदायत दी कि कोल्हापुर म्यूनसिपलिटी के 19 वार्ड्स में पोलिंग ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए।